So I hope everyone can see my screen. Yes, no, maybe. हाँ जी शो हो रही है. Good. Okay, guys, then. So today's the unit 4 we will discuss all together, and the topic will be introduction to measures of variability. So since we have already studied about some measures for the central tendency, where we studied about how we calculate a central tendency values, which help us to give us a brief idea for the whole data collection by the method of mean, median, and mode. So as some people from you have some doubts regarding median and mode, so I will clear the median and mode first, and later we will move to the next session. And so Nana, we have Nana also. So she was having some doubt regarding percentile and parameters and median, I hope, for group and ungroup data. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. नहीं आ रही क्लियर? Is it clear now? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी. I think it should be बीच clear. में कट हो रही है. Okay, it's okay. लेकिन फिर भी comparatively कल के कंपैरिजन में आज नेट सही चल रहा है, ऐसा कोई इशू है नहीं. So बीच में अगर कुछ इशू हो तो it's okay, no problem. I will repeat myself. Just let me know whenever you face any kind of voice issues. Okay then. हाँ. हिमांशु आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पढ़ा रहे हो क्या? Okay. Hello. Am I audible now? Now I am audible, right? Yes. जी अब आ रही है. हिमांशु. Okay. So percentile and percentile rank and parameters. Yes. We will discuss these topics on the weekend session. I will take a doubt session on this unit, or you can say with statistical. लेकिन median और mode की हमें जरूरत पड़ेगी आगे further units में. So I will clear the median and mode first because it is really the important methods which we need for the further calculations. So if we talk about median, so Nana said what is the difference between ungrouped and grouped. जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस क्या है. तो अनग्रुप में मैं ये बताना चाहूंगा, अनग्रुप में इसलिए डिफरेंट था क्योंकि हमारे पास इवन और ऑड डेटा था, इसलिए हमारी वैल्यूज क्या आती थी, डिफरेंट आती थी. मैंने पहले बताया था मीडियन क्या होता है. मीडियन होता है एक मिडिल पॉइंट. हमें एक मिडिल पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो अगर हमारे पास कोई ओड डेटा होगा, सपोज मेरे पास 7 वैल्यूज हैं, तो 7 वैल्यूज का बीच वाला सबसे मिडिल पॉइंट कौन सा होगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. गाइस क्लियर है? Is it audible now? अब क्लियर है. मेरे को ये डाउट था, जो अनग्रुप डाटा में जो मीडियन होता है उसमें ऑड और ऑड डाटा जो है. हाँ जी अब ऑडिबल है. Okay. Yes, continue Nana. What was your doubt? एक बार दोबारा से मोड समझा दो. हाँ मैं मोड पे भी आऊंगा, पहले मीडियन बता देता हूँ फिर मोड पे मेरे आता को है. ये डाउट था, जो मीडियन हमने ऑड डाटा और इवन डाटा में निकाला था, जो हमने मीडियन निकाला था अनग्रुप डाटा में ऑड और इवन में, तो ऑड और इवन में दोनों अलग अलग आंसर्स क्यों आए थे? क्योंकि मीडियन तो सेम आना चाहिए ना. जब हम मीन मेथड से निकालेंगे तो सेम आएगा, तो मीडियन भी तो सेम आना चाहिए. मीडियन होता क्या है मुझे ये बताओ. मीडियन की डेफिनेशन क्या है? मीडियन क्या होता है? लेट मी नो. व्हाट इज मीडियन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियन?
Median is a middle point of any data collection. Am I audible? Hello? Yes, no, maybe? Yes, you're audible. Yes, you are Okay, audible. then. So Nana, median is nothing but the middle point of any No, data I don't collection. know what is that. So let me do one thing. Let me draw something on the screen and we'll let you know. Suppose here we have some odd data. You can say 7. So 2, 3, 4, आपने क्या बोला मुझे 5, एक्चुअली सुनाई 6, नहीं दिया 7. प्लीज Okay. रिपीट Okay. So let me draw this. Suppose मेरे पास ये odd data है. I have 7 different values. Okay. तो ये क्या हो जाएगा? odd हो जाएगा. ये clear है? 1, 2. Am I audible? हाँ जी Yes. Okay. So on the screen, Yes. I have drawn a line with 7 data, you can say. So ये हमारे पास क्या है? Ungrouped data है जिसमें मेरे पास 7 values है. Okay. तो 7 वैल्यूज ओड है. अब नैना का क्वेश्चन ये है कि ओड और इवन में डिफरेंट वैल्यू क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है हमारा मिडल पॉइंट. तो मिडल पॉइंट, अब ये बताओ यार, इवन डेटा में मिडल पॉइंट और ऑड डेटा में मिडल पॉइंट अलग नहीं होगा क्या? एक कैसे हो सकता है? हम यहाँ पे मिडल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक कैसे होगा? अब मेरे को एग्जांपल से मैं बताता हूँ. मैंने यहाँ पे 7 मेरे पास डेटा है, यहाँ पे 7 वैल्यूज हैं. तो इसमें मिडल वैल्यूज कौन सी होगी? बताओ मुझे कोई. मिडल वैल्यू कौन सी होगी मेरे पास यहाँ? 4, राइट? 4. 3 यहाँ पे हो गई मेरे पास, 3 वैल्यूज यहाँ पे हो गई. और जो 4 नंबर वाली जो वैल्यूज है, ये मेरी मिडल वैल्यू है. इसी को मैं बोलूंगा मीडियन. ठीक है? अब ये हो गया एग्जांपल ओड का. ओके. ठीक हाँ है? जी And now suppose I have to calculate a median for a even data, suppose. So for even data, let me draw this. So in even, what will be the difference? I will have even data. Suppose I have 8 values over here, right? तो 8 values मेरे पास अगर यहाँ पे हैं, तो मेरा middle point कौन सा होगा? अब मुझे बताओ कोई. 4 और 5 के बीच में. 4 और 5 के बीच में. मेरा मिडल पॉइंट आएगा यहाँ पे, 4.5 राइट? 4.5. मेरा मिडल पॉइंट होगा 4 और 5 के बीच में. यस. तभी तो यहाँ पे होगा ना 4.5. ये वाला पार्ट इक्वल है इस वाले पार्ट के. इक्वल हुआ? अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ तो ये मतलब बेसिकली इवन में अलग होगा, इवन में ऑड से अलग होगा और मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही होगा. एग्जैक्टली. मतलब उसी के आसपास की वैल्यू होगी. यस, बस हमें डिवाइड करना है ना. देखो ये तो हो गया थ्योरेटिकल, ये समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं. मीडियन होता है क्या है? मीडियन इज नथिंग बट द मिडल पॉइंट. ठीक है? तो अगर हमारे पास इवन होगा तो बीच वाली वैल्यू होगी ना. एक बीच का हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जो डिवाइड कर दे, दो पूरे डेटा को डिवाइड कर दे. हाफ एक तरफ, हाफ लेफ्ट हैंड साइड एंड हाफ राइट हैंड साइड में होगा. ठीक है? तो ये वाला पॉइंट जो मेरा आएगा 4.5 जो मेरा आएगा, ये हो जाएगा मेरा मिडिल पॉइंट और इसको मैं बोलूंगा मीडियन. और इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका था हमारे पास? n by 2 n by 2 plus n plus 1 n by 2 plus n plus n by 1 by 2. ठीक है? यही तो शायद एक बार चेक कर लेना फॉर्मूला. लेट मी शो यू. होल डिवाइडेड बाय 2 है नीचे. यस. सो इवन डेटा में हमारे पास ये है हमारा फॉर्मूला. ठीक है? तो इसीलिए ऐसा डिफरेंट हुआ ना. ये अभी पता चला नैना? इज इट क्लियर कि अलग क्यों होगा? क्योंकि हमें मिडिल पॉइंट निकालना है. हाँ जी अब आ गया समझ. ठीक है? और अब बात करें, अगर ग्रुप डेटा की बात करें तो ग्रुप डेटा में क्या होता है? ग्रुप डेटा में क्या होता है? ग्रुप डेटा में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी मिडिल वैल्यू का क्या होगी? तो ग्रुप डेटा में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज दिस इज माय ग्रुप डेटा. ठीक है? तो ग्रुप डेटा में ये पर मैं 30 टर्म्स है यहाँ पे, तो ये मेरा इवन हो जाएगा. ठीक है? सपोज यहाँ पे 29 होंगे.
अगर सपोज यहाँ पे 29 होता तो मैं कैसे करता, 29 तो मेरा ओड हो जाएगा। तो आई विल यूज द सेम मेथड। what method I will use? Let me show you. Okay, so let's take this as example. यहाँ पे क्या हमारे पास 30 टर्म्स थे, तो हमने क्या किया था, हमें ये पता करने के लिए कि हमारा मीडियन कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, कौन सी क्लास इंटरवल में फॉल करेगा. So what method we used? We have already seen that we have 30 terms. That means this is even data, right? This is even data. तो अगर मेरे पास even data है तो मैं अपना मीडियन कैसे कैलकुलेट करूंगा? n/2, राइट? n/2 करूंगा तो मेरा मीडियन किस में आएगा? मीडियन आएगा 15 में. 15th टर्म जो मेरी होएगी वो मेरी हो जाएगी मीडियन. और यहाँ पे 15 टर्म कौन सी कैटेगरी में फॉल आउट कर रही है? 5 + 7 12, 7 + 12 + 5 17. इस टर्म में 17 हो जाते हैं, तो मेरा इस कैटेगरी में मेरी कौन सी 15th वैल्यू क्या कर रही है? लाई कर रही है. तो मेरा मीडियन इस कैटेगरी में होगा, राइट? एंड सपोज यहाँ पे मेरे पास 29 होता, अगर मेरे पास यहाँ पे 29 होता तो मैं क्या करता? सॉरी, यहाँ पे मैंने एक सेकंड मैंने यहाँ पे गलत कर दिया. हाँ, तो इवन डेटा में मैं कौन सा यूज करता हूँ, फॉर्मूला कौन सा यूज करता हूँ? इवन डेटा में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला, कि मतलब मेरा एक तो जो हाफ वाली जो वैल्यू होएगी, जो सबसे बीच वाला टर्म होगा, n/2 वाला टर्म होगा, प्लस में, और जो क्या कहते हैं उसका नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो इवन डेटा में यूज हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 है तो एक तो क्या हो जाएगी 15th टर्म, और दूसरी कौन सी हो जाएगी 16th टर्म. इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी ना मेरी, जो मीडियन होगा इन दोनों के बीच में फॉल आउट करेगा, राइट? लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 29 होता तो हम क्या करते? अगर 29 होता तो हम डायरेक्ट ये करते 29 + 1 n + 1/2. यही तो है ना फॉर्मूला. जब मेरे पास ओड डेटा होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 29 टर्म्स होते, देन व्हाट मेथड आई विल यूज? आई विल यूज दैट मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीडियन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिडल पॉइंट. तो मिडल पॉइंट मेरा अगर ओड यहाँ पे 29 होता, यहाँ पे सपोज n + 1/2, n + 1/2, और n + 1/2 करके मेरा क्या टर्म आ जाती? n + 1 30/2. मेरे डायरेक्ट टर्म निकल जाती 15. ठीक है, तो मेरी 15 टर्म कौन से ग्रुप में, कौन से कैटेगरी में लाई कर रही है? इसी कैटेगरी में लाई कर रही है, राइट? यहाँ पे इवन था. सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 की जगह ना मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ. सपोज 1 सेकेंड, और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. 5 की जगह अगर यहाँ पे सपोज करें, यहाँ मेरे पास यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो मेरा मीडियन, अगर मेरे पास 30 टर्म्स हैं तो मेरा मीडियन कौन सा आएगा? 15 और 16 के बीच में आएगा. तो मेरा कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? 5 + 7 12 + 2 14. यहाँ पे भी नहीं आ रहा. 14 के बाद 6 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 20. तो मेरा मीडियन इस कैटेगरी में फॉल करेगा. अंडरस्टूड? Then I will use this class interval to find out my median. Am I clear? Yes, no, maybe? Yes. ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, बोलो, आगे तो बोलो. ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, Yes. वो पहले हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, एक्सक्लूसिव में? उसके बाद फिर मीडियन निकालेंगे. देखो, नहीं, जरूरत नहीं है यहाँ पे निकालने की. कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं. या इसी में निकल सकता इसका है. देखो डायरेक्ट मेथड होता है, मैंने बताया था. जब अगर हमारे पास इंक्लूसिव होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 प्लस कर देते हैं.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे क्लास इंटरवल को चेंज करने की जरूरत थोड़ी ना मैं है। वही कह रही हूँ, पहले कन्वर्ट करेंगे या डायरेक्ट हाँ, ऐसे हो सकता है? क्योंकि हम देखो फॉर्मूले के हिसाब से चलना है हमें, हम यहाँ पे सिर्फ हाँ क्या जी, चाहिए, एल उस चाहिए, पर्टिकुलर एक को ही करेंगे ना। एक को ही करेंगे। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे अगर दूसरा, अगर मैं जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आज पढ़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे हर एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती है मिडिल पॉइंट से, जो यहाँ से मिडिल पॉइंट आएगा उससे मुझे पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तब मैं क्या करता हूँ, हर एक क्लास इंटरवल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिडिल पॉइंट में। ठीक है, लेकिन बट in this case we need to use only a single class interval, so I won't use that method, I will directly change that class interval only, I won't go for any other class interval। मेरा बाकी से जरूरत ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो मैं क्यों करूंगा फालतू काम, क्यों? ओके। क्लियर? ओके, हाँ जी। तो अभी बताओ मीडियन में हाँ किसी को जी। डाउट है? एनीवन एल्स? नो? Sounds good. Okay then. So now the next is mode. भाई एक्चुअली Yes. Continue. Someone was speaking. Continue. Amit. एक बार और समझा देते। Okay guys, क्या समझ में आया? तुमने प्रीवियस क्लास अटेंड की थी जो पूछ रहा है मुझसे? नहीं, नहीं की थी ना, तो एक काम करो, पहले मेरी जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई ये हैं, फर्स्ट क्लास है आई विल, फर्स्ट मेरी। क्लास है ना, इसलिए यार अभी ऐसे अगर मैं सबके ऐसे डाउट लूंगा ना तो पता है इसी में अटक जाएंगे, आगे बढ़ूंगा ही। आई विल शो यू माय यूट्यूब चैनल, आई हैव अपलोडेड द प्रीवियस सेशंस, ओके ओके। लेट मी शो यू। नेट स्पीड सही में स्लो चल रही है। ओके, लीव इट। तो तुम क्या करो, जिसने अगर जो पहले आज जिसका भी आज पहला सेशन है, ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी, बट आप क्या करना, जो मेरी प्रीवियस जो जिसमें मैंने बेसिक, so the members who have joined today, so it will be better for them, you can refer the previous sessions first and check out the basics for mean, median and mode, and the basics with the statistical. And what I will do, I can see that today we have more people, around 16 and 17. I can see we have lots of newcomers as well. So what I will do, on the coming weekend, on Saturday or Sunday, I will take a doubt session, or you can say a revision session, where I will start from the beginning, start from the unit 1, and will try to cover all the basics for the statistical methods of psychology, BPCC 104. So it's better for you, just go ahead and मेरी जो वीडियोस हैं प्रीवियस, उसको एक बार देख लो, बेसिक समझ लो, उसके बाद जो डाउट होगा, डाउट सेशन में अलग से रखूंगा, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने क्या कहते हैं मीडियन एंड मोड में इश्यूज था, उनको आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में, तो ये क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। बाकी आई विल मेक श्योर आगे आपको ऐसा इशू ना आए, लेकिन फिर भी मैं डाउट सेशन लूंगा, कहने का मतलब मेरा ये, सैटरडे संडे को मैं डाउट सेशन लूंगा, जहां पे जितने भी नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, वो एक बार मेरा वीडियो चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लो, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, देन वी विल गो फॉर द फर्दर टॉपिक्स। सो नाउ समवन अच्छा, तो एल्स। ये आपका हम्म, ओके ये हिमांशु, आपका ये यूट्यूब पे है ना जो भी यस कुछ है वो? यस। ये तो आपने कल पढ़ाए हुए चैप्टर्स भी यूट्यूब पे आपने अपलोड किए हुए हैं? Actually, yesterday we did not have any session. Before हाँ, yesterday, परसों like, परसों के दिन। हाँ, परसों, whatever session I या take, डे बिफोर all the यस्टरडे। sessions have been uploaded on YouTube. And today also, I am हाँ, recording this session. Whatever we have, it will be ओके uploaded फाइन on फाइन। YouTube. So, ओके, थैंक someone यू भैया। else asked me about the mode. So, mode is basically तो अभी the आप मुझे ना value. मोड्स बताइए। Yes. तो मोड क्या है? मोड हमारी वो वैल्यू होती है, गिवन डाटा की वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। ओके, दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ मोड। Mod is nothing but that value which has the maximum number of terms in that data collection. If I'll take example of this data is ungrouped data, so in this data I can see there is on the 34 is the only term which repeated only 2 times, other than that 58, 32, 47 कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो
The mode can be calculated in a simple manner by just counting the scores that appears maximum number of the times in the data. So mode is nothing but that value which appears maximum numbers of the time in the data. वो हमारा mode होगा. तो अनग्रुप डेटा में तो आंख बंद करके बस ये देखना कि सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म आ रहा है, अपीयर हो रहा है, वही हमारा मोड हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मोड हमें पता करना है. तो मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन. मीडियन निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पे निकाला, जो मैंने अभी समझाया है, यहाँ पे जो समझाया मैंने, इस फॉर्मूले से जो हम मीडियन निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, माइनस 2 इंटू मीन. जो हमने मीन निकालना सीखा था पहले कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस मीन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. दैट्स इट. ओके, हिमांशु एक बार मीन का डेफिनेशन क्या है बता दीजिए ना प्लीज. Mean is nothing but the average of the given data. Mean is average. Yeah. Average means the sum of the total number of terms divided by the total number of terms. Data. Exactly. The average of the given data. That is known as mean. Okay. Any doubt, guys? Thank you. Yeah. Okay then. So now I will move to the next unit. Yes. No doubt. Okay, great. Fair enough. So now I will move to the next unit, which is all about the measures of variability. So till now we have understood the introduction to the measure of central tendency. कि हमने mean से क्या किया, एक वैल्यू को कैलकुलेट किया, राइट? जो हमें आइडिया बताती है, क्या आइडिया बताती है, एवरेज बता दिया उसने पूरे डाटा का, पूरे डाटा का एवरेज बता दिया, मेरे को एक सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू मुझे पता चल गई. अगेन मीडियन क्या करता है, पूरे वैल्यू का मिडिल पॉइंट बता देता है. अगेन मिडिल पॉइंट हमें क्या हेल्प करता है, मिडिल पॉइंट हमें हेल्प करता है पूरे डेटा को थोड़ा ब्रीफ मुझे बताने के लिए कि हाँ ये मेरे मिडिल वैल्यू, इसका मतलब इसके आसपास ही सारा मेरा डेटा होगा, या मतलब एक ब्रीफ आइडिया मुझे देता है. सेम मोड हमें क्या बताता है कि गिवन डेटा में सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, द मेजॉरिटी ऑफ डाटा में कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे द नेक्स्ट यूनिट जो है, यूनिट 4 जो है, ये हमें क्या बताएगी, ये हमें ये बताएगी जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सुनना ध्यान से, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो सिंगल टर्म्स होती हैं, इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या वेरिएंस होता है, इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितना गैप होता है, क्या इनके बीच में रिलेशन होता है. क्योंकि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच वाली वैल्यूज क्या है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या उनका रिलेटिवनेस है उनके बीच में. व्हाट वी डू, वी डायरेक्टली टेक द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट. लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबिलिटी में हमें क्या सीखना है, वेरिएबिलिटी में हमें ये सीखना है कि जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो डिफरेंट डेटा है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है. गेटिंग माय पॉइंट? यस हिमांशु. तो जैसे अभी यहाँ पे डाटा ए और डाटा बी दिया हुआ है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डाटा बी में क्या है, 77767555655. अब यहाँ पे ये एक चीज देखो कि यहाँ पे इन आपस में इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट. इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही वैल्यूज हैं, राइट. 7 है ज्यादा, फिर उसके बाद 6 आ रहा है जिसमें से सिर्फ एक माइनस हुआ है, फिर 7 है, फिर 5 आ जाता है जिसमें 2 माइनस हुआ है, फिर 6 है, फिर 5 है. इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे लुक सिमिलर, they don't have that much of difference, right? But in data A, what is the difference? The difference is there is a huge difference, right? First value is 8, then the second value is 2. That means there is a difference of 4 numbers, right? And the third value is 6. Again there is a difference of 4 unit. And the next value is 4. So यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएट कर रही है वैल्यूज, राइट. बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, एक कम है, फिर दूसरी बहुत ज्यादा है, फिर तीसरी बहुत कम है, फिर चौथी बहुत ज्यादा है. फिर इसमें डिफरेंस क्या है, जो डेटा बी है इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी है, एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है. लेकिन डेटा ए में क्या है, डेटा ए में जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. बट द नंबर ऑफ टर्म्स 10. दोनों में क्या है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 है.
इसमें भी 10 टर्म है, अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। नीचे वाले में भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, एंड अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आएगा 60। डेटा बी को भी अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आएगा 60, राइट। और मैं अगर 60 को 10 से डिवाइड करूंगा, मीन कैलकुलेट करूंगा, दैट मींस एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा 60 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, राइट। 60 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। अब एक चीज देखो, दोनों में हमारे पास टर्म्स भी सेम है, 10 टर्म्स है, टोटल भी दोनों का सेम है, मीन भी दोनों का सेम है। ओ तो फिर डिफरेंस क्या है? देयर इज ओनली वन डिफरेंस। व्हाट डिफरेंस? द वेरिएंस, द वेरिएबिलिटी बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। Am I clear? Yes. Yes, हाँ जी। Himanshu. Great. So that is the you can say the basic idea behind the variability. What is variability? So variability is nothing but the variation or the deviation between the values of the data, you can say. अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे, ये हमारा टास्क है यूनिट 4 के अंदर, कि हम इनको मेजर कैसे करेंगे। ये तो हमें पता चल गया डिफरेंस है, तो हम इनको मैथमेटिकली by using the several methods in statistical, how we calculate the variance, the variability, the deviation, how we calculate by using the mathematical expression that we will learn in the further session. Okay, so I will start with the concept of variability data. So if I'll start, it actually refers to the spread of the scores in the group in the relation to the mean. It means हमें ये क्या बताती, हमें ये रेफर करती है कि जो हमारी जो ये वैल्यू है, सपोज जो 8 वैल्यू है मेरी यहाँ पे 8, ठीक है, मीन से इसका कितना डिफरेंस है? अगर मीन से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 52। मतलब ये मीन से 52 पोजीशन दूर है। तो मैं ऐसे कह सकते हो, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में, कि मीन से ये 52 नंबर्स कम है इसके पास। और सेकंड वैल्यू कितनी है 2, तो 2 कितनी दूर है? 2 है 58 पॉइंट दूर है इससे, मीन से। थर्ड वैल्यू कितनी है 6, 6 कितनी दूर हो जाएगी? अगर मैं मीन से 6 माइनस कर दूंगा तो 54। तो जो थर्ड वैल्यू है वो मीन से 54 पोजीशन दूर है। जैसे अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 अगेन 52 नंबर कितना मीन से दूर है, राइट। और अगर मैं दूसरी वैल्यूज की बात करूं, ये क्या है, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या, हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू मीन से कितना दूर है, या कौन सी वैल्यू का मीन से कितना डिफरेंस है। यस, जो ये मीन की बात कर रहा है, मीन तो 6 है ना, ये तो टोटल सम सॉरी है सॉरी सॉरी डाटा का। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, समझ जाया करो यार, कभी मीन कभी से निकल। तो 2 ही का डिफरेंस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, समझ जाया करो यार, कभी कभी निकल जाता है। तो मीन से हमें बस ये कैलकुलेट करना है, मीन से हमें ये पता करना है। मीन हमने क्या किया, पूरे को कैलकुलेट करके और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ टर्म्स से, हमारे पास एक मीन आ गया। मीन क्या बताता है? हमें एवरेज वैल्यू बताता है, राइट। मीन हमें एवरेज वैल्यू बताता है, और एवरेज वैल्यू से हमारी हर एक वैल्यू, एक इंडिविजुअल वैल्यू कितना दूर है, ठीक है, कितना पास है, ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है वेरिएबिलिटी से। ओके, इसको हम डिस्पर्जन भी कहते हैं, इसको हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। कि हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो मेरी एवरेज वैल्यू आ गई, जो मेरा मीन आ गया, जो मेरी एवरेज वैल्यू आ गई, जो उससे मेरी हर एक वैल्यू, हर एक फ्रीक्वेंसी कितना दूर है, कितना पास है, कितना वेरी कर रहे हैं वो एक दूसरे से, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर वेरिएबिलिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं ये सब चीजें, ठीक है। So it describes how similar a set of scores are to each other. The greater the similarity of the scores to each other, the lower would be the measure of variability. अब मुझे ये बताओ, अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उनके बीच में क्या है? डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। सॉरी, अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो उनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? बताओ। अगर कम वेरिएबिलिटी, डिफरेंस रहेगा। हाँ, अगर नहीं वेरिएबिलिटी अगर ज्यादा है, अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा, मतलब वेरिएबिलिटी मतलब ये कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बीच वेरी कैसे कर रहे हैं, वैल्यूज वेरी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा सिमिलर है आपस में, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मेरा क्या आएगा? जो मेरा वेरिएबिलिटी भी आएगी वो भी क्या आएगी? सिमिलर सिमिलर आएगी। लेकिन आगे ये टर्म चेंज हो जाएगा, जहां पे ऑपोजिट हो जाते हैं। कहां पे हो जाते हैं मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। सो
here we have some properties, you can say important points in measures of variability. So measure of variability are used to test the extent to which an average represent the characteristics of the data. If the variation is small, ठीक है, वेरिएशन इज स्मॉल, इट इंडिकेट्स हाई यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर वेरिएशन कम है तो वो क्या है, ज्यादा यूनिफॉर्म है. ये ऑपोजिट हो जाता है. यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर है, यू कैन से होमोजीनियस. ठीक है, अगर वेरिएशन कम है, एक दूसरे से ज्यादा दूर कांस्टेंट है, नहीं है, डिफरेंस कम है, तो वो ज्यादा यूनिफॉर्म है. समझ में आ गया, ज्यादा यूनिफॉर्म है. सपोज कि अगर जैसे एक लाइन ग्राफ बना लिया. हाँ, तो अगर सपोज 10 बच्चे हैं क्लास में और मैंने कोई 100 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया है, तो 10 के 10 बच्चों के नंबर आए हैं, किसी के 90, 92, 93, 94, 96, 98, 99 ऐसे नंबर आए हैं. ठीक है, एक तो मेरे पास ये डेटा हो गया. और एक दूसरा डेटा है जिसमें मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 100 मार्क्स का मैंने पेपर लिया है, लेकिन किसी के आए हैं 10, किसी के आए हैं 15, किसी के आए हैं 55, किसी के आए हैं 75, किसी के आए हैं 89. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है जो डेटा ए है ना, वहां पे तो जितने भी बच्चे हैं सबके 90 प्लस आए हैं, और सबका जो डिफरेंस क्या है, नहीं है उनके बीच में. तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा कि ऑल द स्टूडेंट्स इन डाटा ए आर इंटेलिजेंट, दे आर यूनिफॉर्म, राइट. But if I'll take an example of data B where the students have scored the different scores, you can say किसी के 10 मार्क्स है, किसी के 25 हैं, किसी के 50 है, वहां पे मैं क्या कहूंगा, the score is not uniform, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है. कोई बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा एवरेज है. तो ये डिफरेंस को हम पढ़ेंगे किसके अंदर, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर. आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर. हाँ जी, क्लियर है. क्लियर है. So we have some points over here. You can read it by yourself. यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने, जो मैं बता रहा हूँ verbally जो बता रहा हूँ वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है. I can read some of the points. Suppose this measures of variability helps in identifying the nature and cause of the variation. Such information can be useful to control the variation, right? तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हमें किस में हेल्प करेगा, उस डेटा के नेचर को आइडेंटिफाई करने में, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि उनके बीच में वेरिएशन क्यों है. ठीक है, और ये मेरे को हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, कि मैं उस वेरिएशन को कम कैसे करूं. ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक डेटा में बच्चों के मार्क्स आए हैं, सबके 90 प्लस आए हैं, 91, 92, 93, 95, 97, और एक में आए हैं कि उनमें बहुत डिफरेंस है. तो जब मैं वेरिएशन से, जब मैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी से मैं कैलकुलेशन करूंगा, उसके बाद जो रिजल्ट निकालूंगा, उससे मुझे ये पता चलेगा ना कि जो डेटा बी है, यहाँ पे तो कोई बच्चे तो बहुत ज्यादा वीक हैं, कोई बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चे बहुत ज्यादा एवरेज है. तो मैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा, उसको यूज करूंगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस the difference between the students. I will try my best कि जो वीक बच्चा है उसको भी मैं ज्यादा मेहनत करूं उस पे, ताकि वो भी क्या करे, वो भी इंटेलिजेंट बन जाए. तो ये मेरा यूज हो जाएगा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का इन स्टैटिस्टिक्स. Am I clear? हाँ जी. Yes. Great. So if we go to the third point, it says measures of variability helps in comparison of the spread into two or more sets of the data with respect to their uniformity and consistency. जो हमने ये भी यहाँ पे किया था, डेटा A और डेटा B में किया था. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें जब हम वेरिएबिलिटी के थ्रू अगर हम पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि डेटा ए और डेटा बी आपस में कैसे कंपेयर हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमें पता चलेगा. किससे पता चलेगा, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी से. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, या पढ़ लेना. बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन और जो बेसिक आइडिया होता है, हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ती है इसकी इन साइकोलॉजी. आज जो फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक बार फिर से मैं एक चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बेसिक में हमेशा रिपीट करता हूँ. व्हाई वी आर स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, बिकॉज इन साइकोलॉजी once we complete our studies, once we complete all the courses, and if once I will move to a job role, तो मेरा काम क्या होगा, मेरा काम यही होगा ना कि मैंने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ लिया पूरा, अब मेरे को क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस पे ऑब्जर्व करके मुझे डाटा कलेक्ट करना है. और डाटा अब क्या कहते हैं, एक आदमी पे ऑब्जर्व करके तो मैं कोई कंक्लूजन पे आ नहीं सकता. सपोज यहाँ पे अनुराग मीटिंग में है, सिर्फ मैं अनुराग को पहचान के मैं ये तो नहीं बता सकता ना कि बाकी सब लोग मीटिंग में कैसे हैं. मेरे को अगर एक आइडिया निकालने के लिए, अगर मेरी मीटिंग में अगर 20 लोग हैं, तो 20 में से कम 10 लोगों से तो मैं बातचीत करूंगा ना. कम से कम 10 लोगों से बात करके मैं रफ आइडिया निकाल सकता हूँ कि हाँ, कि मीटिंग में जो 20 लोग हैं ये इस टाइप के लोग हैं. कम से कम 10 से तो बात करना पड़ेगा ना, एक से बात करके तो होगा नहीं. हिमांशु, यस.
मैंने ना ग्रुप में एक फोटो सेंड किया है, ओके एक बार ना उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करना। यस, तो यही है डिफरेंस। जैसे एक में वेरिएबिलिटी ज्यादा है और दूसरे में कांस्टेंट है, यही डिफरेंस है। बस यही डाटा ए और difference बी का मीन सेम है, This is सबका 6। uniform. Data B is uniform, but data A is not uniform. You can say. यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब किसी डिफरेंस क्या है, कम ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सिमिलर सिमिलर हमें लग रहा है, यही है। ठीक है। So next we have some functions of variability. Functions of variability में वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी। हाँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया समझ लो, इसके बाद तो पूरा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस है। ठीक है, आगे डेटा में तो बस हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, ऐसे पागलों की तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं। यूज क्या है इसका, यूज यही है कि हमें बस ये पता करना है कि डेटा में वेरी कितना कर रहा है डेटा, जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमने डेटा कलेक्ट किया वो आपस में वेरी कितना कर रहा है, बस हमें ये पता करना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इसमें भी सब यही बताएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी इन द डेटा ऑब्टेन्ड एज इन द केस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम, एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें हेल्प करता है, ये वेरिएबिलिटी हेल्प करता है ना। जैसे मैंने सपोज कि मैंने ये सोशल इकोनॉमिक मैंने स्टेटस मैंने डाटा कलेक्ट किया 100 लोगों के, 100 घर में मैं गया, फैमिलीज में गया और वहां से मैंने डाटा कलेक्ट किया। तो सपोज एक की सैलरी तो है 10,000 और एक की है 1 लाख और एक की है 5 लाख और एक की है 50,000। लेकिन बाद में मैंने दूसरे मैंने डेटा कलेक्ट किया, वहां पे एक की सैलरी 50,000, एक की 52,000, एक